ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੀ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੀ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਸੱਚ ਸੰਗੀ ਪਿਆਰੇ, ਆਪ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤਰੀ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਕ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਰੱਬ ਦੇ ਸਵਰਗ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਰਕ ਦਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯੋਗ ਮਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਉ ਕਹੈ ਮੇਰਾ ਪੂਤ ਵਿਆਹਿਆ, ਗਿੱਲੀ ਲੱਕੜੀ ਕੋਕੜ ਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਯੋਗ ਮਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗਿੱਲੀ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਘੁਣ ਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਸਲੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਰਿੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹੀ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਟੋਰ ਗਵਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਪਸ਼ ਨਾਰੀ, ਇਹ ਸਭ ਤਾੜਨ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਕਰਾਤ ਵਰਗਿਆਂ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਅਰਸਤੂ ਵਰਗਿਆਂ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੀ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
4 ਇਸਤਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ 4 ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਵੇ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਵੀ ਮਿੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਭਈ ਉੱਥੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਅਪਸ਼ਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ। ਆਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆ ਜਾਈਏ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁੱਡੀ ਸਾੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸਾੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਪੱਥਰ ਜੰਮਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ 3-4 ਸਾਲ ਵੱਧ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਲੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਰੋ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਲਕੀ ਜੀ ਝਲਕ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਲਮ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਕਲਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਕੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦਾਤਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਪਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੈਲਦਾਰ ਪਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜੈਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ। 7 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਵੀ ਰਹੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਰਹੇ, ਬਿਮਾਰ ਠਮਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਬੜੇ ਤਾਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇਰਾ 58 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਕਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਹਜ਼ੂਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹੀ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ?
कह लगे मैं गुरु शब्द का लंगर चलावांगा, तू दुनियावी लंगर चलाया करी। और बेनती करा, माता खीवी ने इस ढंग नाल लंगर चलाया, ਉਹਦਾ नाम 2 बारी गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र बाणी विच दर्ज है। कोई बंदा सिੱਖੀ ਦੀ विचारधारा का जानू ये नहीं कह सकता भी मैं इस्त्री के मत्थे नहीं लगना। वो तो इस्त्री को मत्था टेकता है। माता खीवी का नाम गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी विच अंकित है। कितना बड़ा दर्जा उन्होंने सतगुरु जी ने बख्शिश किया है। फिर गुरु अमरदास जी की बारी आई। ये तो तुहानूं याद होएगा ही, क्योंकि बड़ी कॉमन की गल है भी गुरु अमरदास जी के दरबार च बाबा अकबर आया सी। अकबर आया तो अकबर ने बेनती की, सतगुरु मैनूं हुक्म करो भी मैं जगीर ना लाना चाहना। सब कह लगे भी सानूं जगीरां दी लोड़ नहीं, सानूं जगीरां दी लोड़ नहीं। एक राजा आया जगीर ला जाएगा, दूजा राजा आया जगीर बंद कर जाएगा। जगीरां दे सिर ते नहीं पलदे। साडी तां जगीर परमेश्वर के नाम की है। साडी तां जगीर इन्हां गरीबां की दसां नौं की किरत कमाई की, सिखां की किरत कमाई की। ये जगीर कदे खत्म नहीं हुई। अकबर कह लगे भी मैं आया अक्सर मैं कुछ तो सेवा करके जावा। शायद कहने हाँ 4 गल्लां करके जाए, ये सेवा करके जा। पहली गल, इन्हां गरीब किसानां दा मामला माफ करके जा। अकबर ने उस वेले मामला माफ किया सी। दूजी गल, इस्त्री जाति के 3 तशद्दुद होंदे ने, वो तिन्ने माफ करके जा। मैं बेनती करा, पहला तशद्दुद होंदा इस्त्री दे उत्ते जदों इहदा पति चढ़ाई कर जांदा सी, भावें ब्याही लड़की नूं 4 दिन होण, भावें 5 दिन होण, भावें 6 साल हो जाण, भावें 20 साल हो जाण, ਉਹਨੂੰ नाल चुक के सती कर दिता जाता सी। तुसीं सोच के देखो, एक पति की चिखा के उत्ते एक जवान बच्ची को जिउंदियां चुक के अपनियां अखां के सामने साड़ देना, किन्ने तरसदे होणगे लोग। पर जमाने की रीत सी, सती कर दिता जाता सी। इसलिए शायद आपको पता होवे, बड़िया थावां के उत्ते सदियां दी थावां बनिया हुई। दूजा इस्त्री के उत्ते तशद्दुद हुंदा सी भी इहने चेहरा ढक के रखना है। हुण ते बहुत कुछ बदल गया। तुसीं अकबर बादशाह के वेले की एक लिखी किताब है, अकबर के वेले का व्यापार, बड़ी अलग किस्म की किताब है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उस वेले जिक्र किया होया भी घग्गरा जिहड़ा सी ना इस्त्री नूं पाउणा पैंदा, ਉਹ 32 मीटर का भी कई थावां के उत्ते घग्गरे का जिक्र आया है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ सोच के देखो अपने आप को, अज भी इस्लाम की दुनिया च तुसीं देख सकते हो बुरके पाए हुए ते कितनी गर्मी हुंदी है, फिर भी उन्हें बुरका पा के अपने आप को कज के रखना। ये भी एक तशद्दुद सी। पहली गल सी सती करना, दूजी गल इस्त्री नूं पर्दे च रखना, तीजी गल सी जिहड़ी नाल इहदे सब तो वड्डी ਉਹ सी भी पुनर्विआह नहीं सी कर लेंदे, सैकंड मैरिज नहीं सी कर लेंदे। जे कोई पत्नी चढ़ाई कर जाए तो पति दोबारे विआह कर सकता है, पर पत्नी दोबारे विआह नहीं कर सकती। पत्नी चढ़ाई कर जाए तो पति को कोई बदसूरत बदकिस्मत बंदा नहीं सी मनता, पर पति चढ़ाई कर जाए इस्त्री के मत्थे नहीं सी लगते भी विधवा मत्थे लग गई। शगन वाला कोई काम करना हो तो पहला कहा जाता सी तू अंदर नहीं, किसी के सामने ना। कितने लंबेरे समय के तशद्दुद गुरु अमरदास जी ने अकबर बादशाह के कोल तिन्ने माफ करवाए सन। ये गल वखरी है भई ये 1857 के नेड़े जाके ये क्रैडिट गोरियां नहीं ले लिया, साडी बदकिस्मती, असीं बहुत कुछ अपना विरसा भुली बैठे हैं। पर पहली बारी सती प्रथा जी बंद करवाई है वो गुरु अमरदास जी ने करवाई। फिर अगे गल तोड़ा, गुरु रामदास जी के वेले देखो कितनी बड़ी अजीब कहानी है। बीबी भानी का रिश्ता एक गरीब घराने च कीता ते उस दे विचों भी बीबी भानी का जीवन जिहड़ा है एक दुनिया की मिसाल बन गया। ये मैं कई बार तुहाडे नाल साझी कर चुका हूँ गल, मैं इन्हूं ज़्यादा नहीं दोहराउणा चाहुंदा। गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज के वेले
ਸਾਹਿਬ ने जिन्नी बारी भी जिक्र किया मनुख की अख को दोषी बनाया, इस्तरी के रूप को दोषी नहीं बनाया। पर तेरे रूप ना पेखा नेत्र साध की तहत संत संगी। छेवें पातशाह को शाह दौड़ा सवाल करता है, भई आह किहड़ी फकीरी होई तुहाडी, धन दौलत भी तुहाडे कोल है, धीआं पुत्त भी तुहाडे कोल ने, इस्तरी भी तुहाडे कोल है। साहब ने जवाब दिता सी, कहने कि साडे घर में दौलत गुजरान है, औलाद निशान है, तो याद रखो इस्तरी ईमान है, इस्तरी तो धर्म है। सगों तुसीं कहने धर्म बर्बाद होंदा है। सतवें पातशाह की अपनी पुत्री बीबी रूप कौर, याद रखो जे लवेरा समा गुरमत दे विच गुरु घर का प्रचार करती रही है। मैं पहलों भी अर्ज करा, साडी कितनी बड़ी बदकिस्मती है जे तक कोई इस पासे खोज वाले पासे भी नहीं तुरिया। गुरु अमरदास जी ने जिथे 22 मंजियां थापियां, उत्थे 52 पीढ़े थापे सी। वो 52 के 52 पीढ़े बीबियां कोल सी प्रचार करने वास्ते। गुरु घर दियां 2 मंजियां भी बीबियां दे कोल सी, परिवार दे कोल सी, पति पत्नी दे कोल सी। सतवें पातशाह की बच्ची बीबी रूप कौर, 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब जी, उन्होंने शादी नहीं हुई, गल वखरी है। पर एक गल उतों भी सन प्रगट होंदी है, जदों राजा जय सिंह शंका में फस गया सी ना, लोगों ने कहना कि भई इहो जिहा गुरु है, निक्की जी उम्र का बच्चा, तो तू भी सियाना ब्याना होकर इस पास तुरते हैं। उन्हें एक कमरे में बिठा के अपनी घरवाली को कहा सी कि मेरी घरवाली तुहानूं एकांत में मिलना चाहती है, भी वो इस्त्रियां में मिलना चाहती है, क्योंकि दरबार नहीं आ सकती। गुरु हरकृष्ण साहब जी जदों उन्होंने जाके मिले सी, ये नहीं सी कहा भी मैं तेरे मत्थे नहीं लगना, बल्कि गोली ने रानियां वाले कपड़े पाए सी, रानी ने गोलियां वाले कपड़े पाए सी। गुरु हरकृष्ण साहब जी ने जाके उन्होंने पूछा सी, भलीए तेनों शुक्र करना चाहिए, गोली शुक्र कर रही है कि तू कमली रानी होके भी गोलियां बनना चाहती है। गुरु तेग बहादुर साहब जी, मैं खास करके अज बेनती करा भी जे बीबियां इस पासे तवज्जो दे के सरवण करना, तो उन्होंने पता लगे भी गुरु घर का कितना बड़ा कर्ज साडे सिर ते है। हथ जोड़ बेनती कर लगा, साडे समाज में एक रीत है, ब्याह होए नूं 2-4 साल लंघ जाण, संसार उन्हां ते सवालों ते सवाल करदा है, तुहाडे घर औलाद क्यों नहीं। जिथों तक मैनूं पता भी इहो जे परिवार जिहड़े आम फंक्शनां ते जाना बंद कर दिंदे ने, भी लोकां दे सवालों के जवाब देने औखे हो जाने, दोषी लड़की नूं ठहराया जाता है। याद रखो जे मां गुजर कौर दे लवेरा समा 43 साल की उम्र है मां गुजर कौर की, जदों दे घर पुत्र का जन्म होया 45 साल के नेड़े गुरु तेग बहादुर साहब की उम्र है। याद रखो कि 33 साल ब्याह होए नूं हो गई सी। 1633 में जब उन्होंने ब्याह होया मां गुजर कौर का, 1666 में जाके गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश होता है। 33 साल विआहता जीवन में मां गुजर कौर ने कट्टे ने, पर एक दिन भी कदे मत्थे बट पा के अपने सहुरे नूं, अपने पति नूं या किसी समाज की गल का इतराज नहीं किया। 10वें पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने कितना बड़ा किरदार बख्शिश किया है। जदों एक आनंदपुर साहब के नेड़े जाबर खान द्वारका दास की पत्नी ने चुक के लेके जाता है, गुरु गोबिंद सिंह जी अपने बड़े पुत्र बाबा अजीत सिंह को भेजते हैं। सिख संगत बेनती करती भी सतगुरु असीं किन्ने सिख तजर्बेकार वडेरिया उम्र वाले तुहाडे कोल बैठे हैं, तो तुसीं हुक्म करो भी असीं जाने इहनूं नौजवानी की उम्र में इहनूं क्यों भेजण लगे हो, कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई ऐसा कारण बन सकता है। ये जवानी पैरे में साहब ने बचन आखी सी, कहने लगे जवानी पैरे च चाही तो भेजण लगे, जवानी पैरे च चाही तो भेजण लगे। कहने क्यों, कहने लगे मैं दसना चाहना भी जी सिख की जवानी है ना, वो धियां बच्चियां की इज्जत बर्बाद करने नहीं है,
सिख की जवानी धियां भैणां दे पत कज्जण की जवानी है, गुरमत की जवानी ये होएगी। और याद रखियो, गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी महाराज तो बाद बराबर का इस्त्री नूं दर्जा दिता, ते उन्होंने अपने जीवन काल विच भी जदों किते गुरमत विच किते भी वखरेवा नहीं है, जे पुरख पाठ कर सकता तो इस्त्री भी पाठ कर सकती है, जे पुरख संगत में बैठ सकता तो इस्त्री भी संगत में बैठ सकती है। याद रख, जे पुरख सेवा कर सकता है इस्त्री भी सेवा कर सकती है, कोई इतराज नहीं, कोई वखरेवा नहीं। और इत्थे ही बस नहीं, कितना बड़ा महान दर्जा इस्त्री को गुरमत ने बख्शिश किया। शाह जी ने कृपा करके जेड़े 5 ककार, जेड़ा अमृत, जेड़ा खंडे बाटे की पौन पुरख छक सकता है, कोई इस्त्री छक सकती, कोई 5 ककार को पहन सकती, कोई वखरेवा नहीं। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी महाराज तो बाद विच फिर इतिहास का लंबा समा चलता है, सिख इतिहास का लंबा समा चलता है। और सिख इतिहास के पन्नियां ते उकरियां पईयां गल्लां ने, जदों भी किते लोड़ पई सिख ने दूजियां दियां धीआं भैणां दी पत नूं बचाया। एक बेनती होर कर लगा, मैं संगत में नहीं गल कर सकता क्योंकि कई शब्द ऐसे ने, मेरी धीआं बच्चियां बैठियां ने कि वो शब्द शोभनीक नहीं, पर किसी को कोई लोड़ होवे तो मैनू पर्सनली मिल सकता है। नंबर 1, नत्थ पाउणी, धी बच्ची के नक विच नत्थ पाउणी हद तो वध कह है। मैनू आस नहीं है भाई कोई माँ बाप नत्थ पाउण का अर्थ सुन सकता हो, मैनू आस नहीं, तड़प उठेगा। पर यह गल मैं संगत में नहीं कर सकता, कदे वखरे नहीं सी। दूजी बेनती करा, जेड़ा इस्त्री के नाल ये भी तशद्दद हुंदा सी ना, एक बहुत बड़ा भई रखड़ी बंधदी है, गुरमत ने आख्या कि ये तेनों कमजोर बनाया जाता है, तेनों हर वक्त ही एहसास करवाया जाता है भी या तो पिता की शरण में रमी, या तो पति की शरण में रमी, या तो पुत्र की शरण में रमी, मैं तेनों गुरु की शरण में रखना चाहना, तू बराबर हो। हुण मैं जिहड़ी गल करन लगा सब उहदे वल चली। राह विचों एक डोला लुटिया गया, पति जाके अकाल तख्त सिर के उत्ते रोना रोंदा है। जिहड़ी बरात भी हुंदी सी ना, वो इसे भी हुंदी सी नाल भई पति बरात नाल होएगी। वो लोग हुंदे सन भी जे कोई रस्ते विच हमलावर आवे तां असीं तुहाडे साथी बणीए, पर अज के बराती जोड़े ने वो अपनी शक्ल बगाड़ी फिरते होंगे ने, और शराब पी के तो समझते हो कि उन्होंने मदद की करनी है। जी गल कर लगा सर, लड़की को भी जोड़े पिछे बराबर ताई नहीं आनंद कार्ज किए जाते, लड़की पिछे आनंद कार्जा के वेले तां होंदी है जदों कोई आके डोला चुकण की कोशिश करता सी, पति अगे हुंदा सी, लड़की को खब्बे पासे भी ताई बिठाया जाता है आनंद कार्जा वेले, पति के हथ में किरपान होंदी है, वो सज्जे हथ में किरपान पकड़ के रखता है, जे लोड़ पवे वो खब्बे हथ नाल लड़की की राखी करके ते सज्जे हथ नाल किरपान चला के लड़की की राखी कर सकदा हो। गल अगे थोड़ी वो आके बेनती करता है, अकाल तख्त सिर के उत्ते हरी सिंह नलवा बैठा है, वो कह लगे भी मेरी इवें घरवाली का डोला लुटिया गया कि मैं इन्नी बरात लेके आया सा, इन्ने दिनों के असीं शगन मनाते आ रहे हैं कि हुण मैं किहड़े मूंह लेके घर जावां। वो कह लगे भी कोई गल। हरी सिंह नलवे ने चढ़ाई की सिंघां दे समेत कि वो डोला वापस ले आया। जदों वो डोला छड्ड के तुरन लगा, डोले विचों निकल के जवान कन्या, जवान बच्ची हरी सिंह नलवे की बांह पकड़ के खलोंदी, कहती वीरा तू की लगना मेरा डोला छड़ा के लेके आया, तेरा मेरा की संबंध है। वो कह लगे भैने भी मैनू मेरा गुरु कहता भी जो बराबर दी होंदियां ने वो भैणां होंदियां ने, तो तू मेरी भैन लगनी उस नाते, मेरे गुरु के नाते।
कहने बस यो पुछना चाहती सी, जे मैं तेरी भैन लगनी है, जिन्हां कोलों छड्ड के चलिया, इन्हां कोलों ही डोला लुटिया गया मेरा, इन्हां कोलों ही डोला लुटिया गया। जे मेरे पति च जान होंदी तां उदों क्यों लुटण दिंदा, जे मेरे प्यो च जान होंदी उदों क्यों लुटण दिंदा, जे मेरे इन्हां भरावां च जान होंदी, दिओड़ा जेठां च जान होंदी, उदों क्यों डोला लुटण दिंदे। वो 10 बंदे 200 बंदे को डोला लुट के लै गए चले गए। तो तेनों बेनती करनी है मैं, या तो मैनू भैन ना कहना, मैनू भी दुख ना होता। जे भैन कहा है तो मैनू हुण उन्हां कोल ना छड्ड के जा जिन्हां कोल डोला मेरा दोबारे लुटिया जाए। जे इन्हां कोल मेरा डोला लुटिया गया तो लोकां कहना हरी सिंह नलूए की भैन का डोला लुटिया गया। कहने लगे मैं की करा तेरे लिए दस। कहने लगी नाल ले चले, कोल ना छड्ड के जा। कहने लगे नाल ले जा नहीं सकता। कहने लगी क्यों, कहते जंगलों च रहने। कहते जंगलों च भैन नहीं रह सकती, जंगलों च भैन नहीं रह सकती। कहने रह सकती। दोवें जने चले गए, पति पत्नी दोवें जने चले गए। उन्हें जाके खंडे बाटे की पौल लई, शरनी हरशरण कौर बन गई। हरशरण कौर बन के सिक्खी के विहड़े च सिखां वाला जीवन जी रही है। थोड़ी जी तवज्जो दे के समझना पैना, फिर गल आप साझी करांगे। तुहानूं वक्त मिलिया कदे तुसीं बहुत सियाणे हो, तुहाडे कोल बहुत पढ़े लिखे गुरमुख ने। 712 तो लैके 720 तो लैके करो सुख की गल है। दरा खैबर को टप के पहली बारी मुहम्मद बिन कासम आया सी। मुड़ के 1835-36 तक उधरले पासे किसी ने कोई राह नहीं रोकिया। सौखा जिहा कर दिया, 700 तो लेके 1800 तक कर दो। चलो 11 सदियां बन गई ने। 11 सदियां में हिंदुस्तान की धरती से कोई ऐसा नहीं पैदा होया। दरा खैबर का मतलब पहाड़ी रस्ता जो राह बंद कर दे। सिखा मान करो तेरे विरसे चो पैदा होया। गुरबाणी में पढ़ के पैदा होया। उधर हरी सिंह नलूआ है। दरा खैबर का रस्ता बंद किया हरी सिंह नलूए ने बंद किया। रस्ता ही बंद नहीं किया। उत्थे उन्हें जमरौद का किला बनाया। जमरौद नेड़े एक पिंड है, उसके नाम के उत्ते किले का नाम रख दिता जमरौद का किला। उस राह के उत्ते जमरौद का किला बनाया। जी मैं गल करनी चाहना, उस दरा खैबर के कोल जमरौद का किला है। आ जमरौद का किला है, इधरले पासे पिशौर का किला है। पिशौर पिशावर के कई नाम है। करतार सिंह एम ने कई नाम लिखे ने। अचानक गल चल गई, कई चेते भी नहीं रहते, क्योंकि अभी जसपाल सिंह जी होरी गल कर रही सी। मैं वही गल लेके अगे शुरू कर दी तुहाडे नाल। मैं जिहड़ी गल करनी चाहुंदा वो ये करनी चाहुंदा भी हरी सिंह नलूए ने एडे बड़े महान सूरमे ने। इधर महाराजा रणजीत सिंह के पोतरे का कवर नाम निहाल सिंह का ब्याह है। महाराजा रणजीत सिंह के घर से शादी है, उहदे पोतरे की। पंजाब की धरती से मुड़ के उसकी शादी नहीं हुई। उस शादी में बहुत ही फौज गई हुई है। हरी सिंह नलूआ पिशौर के किले च है। जमरौद के किले में सोच के भी महाराजा रणजीत सिंह के ब्याह में रुझे हुए ने ते फौजा उधर ने इस जमरौद के किले उत्ते हमला कर दिता। इत्थे मान सिंह है, मुखी मान सिंह है इस वेले। जदों हमला किया उन्होंने पठाना ने ते इन्होंने एडे बड़े तरीके कंध दे विच पाड़ पा दिता। उन्हें उस वेले एक सुनेहा भेजा, कह लगे इत्थों जमरौद के किले तो पिशौर के किले च हरी सिंह नलूए नूं कोई जवाब दे जाके। उन्होंने कहो सरदारा जिहड़ा तू किला बनाया ना शान, उस सवेरे गुलाम हो जाना है, कर कुछ प्रबंध। हरी सिंह नलूए नूं सख्त बुखार है। बैदा हुक्म दिता होया भी बैड रेस्ट करनी है।
ये ब्याह च भी नहीं गया। फौज ब्याह च गई हुई है, जमरौल का किला घेर लिया। इधरले पासे पिछौड़ के किले च हरि सिंह नलूआ बीमार पे है, उन्होंने हुक्म नहीं है बैठ तो हिलण का। इधरों हुण जावे कौन सुनेहा देन? बीबी हरशरण कौर उठी, भैणे ख्याल कर, तू रखड़ियां बन्नण वास्ते पैदा नहीं हुई मेरी धीए। उदों हरशरण कौर खड़ी हुई, कहती वीरा मेरे समय का पंथ का कर्ज मेरे सिर ते, तुसीं गिणवे चाहुंदे हो, जदों तक हरि सिंह नलूआ नहीं आउंदा उदों तक तुसीं राखी करियो, मैं सुनेहा दे के आउंदी हां। सिंह कहन लगे, भैणे मन्निया तेरी बहादुरी के असीं माण करने हैं, पर किला चारे पासे तो घेरिया होया है, एक थोड़ी जी भी थां नहीं है, रात का समय तू राती निकल के जाएगी, इतने पठाणों के हाथ आ जाएगी, इज्जत तारो तार कर देंगे। वो कहती नहीं नहीं, जदों मैं बामणा दी लड़की सां, जदों मैं शरणी सां, उदों शायद मेरी इज्जत वाल कोई देख लेंदा। हुण मैं हरशरण कौर है, मेरी इज्जत के हथ पाउण तो पहला पहला गुरु गोबिंद सिंह की बख्शी हुई कृपान उन्होंने बख्श दिया। हुण इज्जत नहीं कोई ख्वार कर सकता। हाँ, तुहानूं यह सुनेहा जरूर आ सकता है भी तुहाडी भैण शहीद हो गई। सिंह मान किया, कहण लगे ठीक है। हरशरण कौर एक चिट्ठी लैके किले तो निकलती है, ते ओ जिमें एक भेड़ तुरे इवें उन्हें अपने उत्ते शाल पा ली है, तो इवें निकल के गई। वो थोड़ी दूर तक तो चलेगी, पर इन्नी दूर तक तुरया नहीं जा सकता, दोवें बाहां ते लत्तां दे भार। फिर वो सीधी हो गई, जब सीधी होकर तुरन लगी, पठाना पिछा किया भी ये तो कोई सिंह नहीं लगती है, तो जब पठाना पिछा किया उन्हें 8-10 पठान झटका दिते, तो वो सारे पिछे परत के होके चले गए। उन्हें जाके हरि सिंह नलूए ने पिछौड़ के किले चिट्ठी दी, सरदारा जमरौल का किला खतरे च। हरि सिंह नलूआ उठे, उठ के घोड़े ते सवार होया। हरशरण कौर ने एक सुनेहा दिता सी भी जे मैं सही सलामत पहुंच गई, हरि सिंह नलूए ने आउणा होया तो उधरों मैं तोप का गोला दागांगी। इधरों पिछौड़ के किले चो तोप का गोला छड्डिया, इधर जमरौल के किले च पता लग गया भी हरि सिंह नलूए ने सुनेहा मिल गया। हुण नहीं कोई डर। सवेरे सवेरे सवेर होंदिया सार सरदार जमरौल के किले पहुँच गया, तो किला बचा लिया सी। गल वक्री, इसे किले फिर हरि सिंह नलूए का शहादत भी होंगी है, वो एक वखरा पक्ष है। मैं इस्तरी की गल कर रहा, तो मैं उस पासे रहना चाहना। पता नहीं मेरी भैन को क्यों पढ़ा दिता गया, पता नहीं मेरी धी को क्यों पढ़ा दिता गया भी तू माता भाग कौर क्यों नहीं बनती, इनू पता नहीं क्यों पढ़ा दिता गया भी तू हरशरण कौर क्यों नहीं बनती, इनू क्यों पढ़ा दिता गया तू बीबी अमरों क्यों नहीं बनती, जिहड़ी गुरु घर विचों एक गुरु पैदा कर सकती है। इनू पता नहीं क्यों पढ़ा दिता गया तू बीबी भानी क्यों नहीं बनती, तू माता गंगा वर्गी क्यों नहीं बनती, तू माता गुज्जर कौर वर्गी क्यों नहीं बनती। तेरे च बड़ा विरसा गुरु घर का पिया होगा। इतनी बस नहीं, इतिहास के पन्नियां नूं पढ़ के देखियो, फिर पता लगता है किड्डियां वड्डियां वड्डियां बहादुरियां सिख कौम दियां। जे तुहानूं होर पासों नहीं भी चेता आउंदा ते कम से कम जदों अरदास हुंदी उदों ही सुण लिया करिए। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने उदों तक ख्याल कर लीए भी इन्हां दा जिगरा कितना बड़ा कड़ड़ा होगा। वह भी तो मातावां सन, वो भी तो भैणां सन। भाई तारू सिंह की भी तो माँ है, भाई तारू सिंह की भी तो भैन है, उन्हें भी तो तोड़िया सी। तो मैं बेनती करा, अज परिवार जिहड़ा है वो बच्ची का जन्मदिन मना रहे हैं। इहो जे मौके ते मैं चाहुंदा है भी सानू इस गल का एहसास होवे गुरु घर विच इस्तरी की किड्डी वड्डी महानता है।
गुरु साहब जी ने आप खुद पत्नी बन के रब नूं पति बना के निरंकार नूं ते इस गल विच बाणी उचारी। लोकी कहते सी इस्त्री के मत्थे नहीं लगना, इस्त्री का नां नहीं लेना। गुरु साहब ने कृपा कर दी, कहने लगे नहीं भलिया, मैं तो खुद इस्त्री बन के पति परमेश्वर को मन के बाणी उचारण की। अज भी बहुत बड़ी लोड़ है। उदों धियां नूं सती करके साथ दिता जांदा सी, अज कुख विच मार दिता जाता है। साडा समाज सेहत रवे, जे उथों बच जान फिर दाज की प्रथा बहुत माड़ी है। जे उथों भी बच जान तो अज भी साडा समाज जिहड़ा है, मेरा ख्याल है भी जितना कहर अज भी इस्त्री जाति ते हो रहा ना, जेड़े भी लड़के की गल नहीं मनी वो तेजाब पा के छिट के चला जाता है। मैनू नहीं लगता भी किसी लड़की ने किसी लड़के से तेजाब पाया हो, मैनू लगता नहीं है। हो सकता कितने होई होगी घटना, पर किसी लड़की ने किसी लड़के से तेजाब नहीं पाया। हजारों लड़कियां ने जिन्हों की जिंदगी तबाह कर दी, लड़कियां ने उन्होंने चेहरे से तेजाब सिट के। पढ़ाई च भी वितकरे ने, हर थां ते वितकरे ने। अज एक बहुत बड़ा सुनेहा सानू गुरु घर दा ये अपने चेते में रखना चाहिए, अपने ख्याल में रखना चाहिए। इस्त्री हर थां ते बराबर रही है, गुरमत में इस्त्री हर थां ते बराबर रही है। गुरमत ने कदे इस्त्री नूं दुरकारिया नहीं है, हद तो वध सत्कारिया। मैं एक गल कह के फिर समाप्ति वाले पासे आ जाना, बड़ा ध्यान देकर सुनो। एक बीबी हर रोज किसी धार्मिक स्थान पर मत्था टेकन जाती है। उहदे गहने, उहदा रहन सहन दसदा जी बीबी बहुत अमीर है। कुदरती भाना वरतिया उत्थे एक लड़की भी मत्था टेकन जाती है, वो घड़ी भर उत्थे सेवा करती है। ते अचानक ही भाना वरतिया भी वो बीबी, अमीर बीबी जदों अंदरों मत्था टेक के निकली, उहदे हाथ में प्रसाद वाली थाली है। किसी पापी ने उन्हें झट मार के गले तो बहुत कीमती हार सी वो खो के लेके भज गया। और तो कुछ समय बाद वो नौजवान लड़की आई, वो पूछती है भी तुसी की गल होगी, क्यों रो रहे हो? वो कह लगी मेरा पति चढ़ाई कर गया सी, मेरे पति का हार है कि वो कोई खो के ले गया। वो कहनी कोई चक्कर नहीं, कोई गल, कोई मन च संशय न करो, तुसी परसों नूं फलाने थाने में आ जाओ कि अपना हार पछाण के ले जाए। वो बड़ी हैरान हुई, कहने लगी एक में, कहने लगी मैं तुसी बाकी पढ़ता ना बोलियो, मेरी हाथ जोड़ बेनती है तुसी परसों नूं आ जाओ, तुसी अपना हार पछाण के। वो तीजे दिन थाने गई, जाके उन्हें देखे कई हार पे ने, उन्हें अपना हार झट पछाण लिया भी आ। जदों हार चुकिया, वो नौजवान लड़की उत्थे खलोती है, उन्हें इंस्पैक्टर की वर्दी पाई है। कहने लगी तुसी वही लड़की हो? कहने लगी मैं भी रोज धार्मिक स्थान पर जाती हूँ, मेरा भी उत्थे रब वसदा है। कहने लगे अच्छा, कहने लगे भी आ हार मेरा है। कहने लगे मुबारक, पर एक शर्त से मिलेगा। केड़ी शर्त है? कहने लगे हार पहनावांगी मैं, तुसी आप नहीं पहन सकते, पहनावांगी मैं। उस अमीर ने कहा कोई बड़ी गल नहीं है, तो कोई बड़ी शर्त नहीं है, तुसी पहना दो। जदों वो हार पहनाउण लगी,
ਉਹਨੇ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਘੁੰਡੀ ਜਿਹੀ ਮੇਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮੇਲੀ ਤੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ। ਬੜਾ ਰੋਕਿਆ, ਨਾ ਰੁਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਥਰੂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਆਖਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਧੀਏ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਘ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਸਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਛੇੜ ਨਾ ਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਦਾਤ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੇੜਦੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਤੂੰ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਗਈ। ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹ ਬੀਬੀ ਰੋ ਪਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੜਕਾ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦੇਵੀਂ। ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੀਏ ਤੂੰ ਲੜਕੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਆਂ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਲੜਕੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੋ ਪਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਂ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਧੀਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਮੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੋਗੇ ਧੀਆਂ ਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੋਗੇ ਧੀਆਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁਰੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਧੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲਿਓ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਰਨ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਰਨ ਕਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜੇ ਬਾਪ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ, ਸਿਰਫ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। 4 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸਿਰਫ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ, ਜਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਉਹਨੇ
फौजियों कोलों हथियार छुपवा ले, वो सरेंडर कर गए, हाथ खड़े कर गए। मोर्चिया विचों कुछ नौजवान बच्चियां निकल के बाहर आईयां जिन्हों के शरीरों उत्ते कपड़ा कोई नहीं सी। वो आके जगजीत सिंह अरोड़े को मिन्नतां कर लगियां, सरदारा सानू बचा लै। उन्हें आख्या तुहानू भुलेखा लग गया, मैं तो दुश्मन है तुहाडा, तुसीं इन्हां कोल कहो, इन्हां ने जिन्हां ने हथियार सुटे इन्हां नूं कहो भी सानू बचा लो। उन्हें आख्या नहीं, इन्हां दे कोलों तो बचना है, साडे अपने ने, पर साडे मोर्चियां विच इन्हां ने दरिंदियां वर्गा साडे नाल हिसाब किताब कीता है, साडे कपड़े पा के इज्जतां लुट लईआं। असीं तेरे कोल आए, तू भावें दुश्मन समझदा होवे, पर सानू पता जी जे सिर ते गुरु गोबिंद सिंह दी पग है, वो दुश्मन की भी धी भैन नूं कदे मैड़ी नज़र ना नहीं वेखदा। असीं तैनूं दुश्मन देख के नहीं आईआं, असीं तैनूं गुरु गोबिंद सिंह दी पग देख के आईआं, साडी इज्जत बचा लै। उस वेले जगजीत सिंह दी अखां च पानी आ गया। गुरु गोबिंद सिंह अज तक तेरी पग नूं कपड़ा समझ के बन्नदा रहा है, अज पता लग्या तेरी पग विचों लोकी गुरु गोबिंद सिंह देखते ने। उन्हें उस वेले पग उतारी, जिन्नियां धीआं बच्चियां दा नंगेज कज सकदा सी उन्नियां दा कजिया। मैं बेनती करा सिखा, तेरे वल दुनिया की नज़र इस लई है भई आ घर जिहड़ा ना देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं जाने का रिश्ता सिखाउंदा है। अज लोड़ है अपनिया बच्चियां का वधिया ढंग नाल जन्मदिन मनाइए, अपनिया बच्चियां नूं इंतहा प्यार करिए, इंतहा प्यार करिए, ताकि उन्होंने एहसास होवे सानू दुरकारिया नहीं, सानू प्यारिया भी जाए। इतनी बेनती कबूल करना, होइयां बेअंत प्रकार दी भुलां नूं खिमा बख्शिश करनी। समुचिया साध संगत दे, समुचे पतवंते गुरमुखां दा सारियां दा धन्नवाद। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की